Recording. Okay. So today the whole focus is on how to handle a problem solution essay, and I have taken 5 essays from the job essays broad list, 6 essays from the job essays. Okay, till the 36th job essay, like 36th and even more, the 37th, there were only 6 essays which were problem solutions. So this is not very common. The most common essays seen are agree disagree essays, and at second number we have the discuss essays. Okay, so this is how we will be managing. Just 1 minute. Okay. Okay, now what do we do when we get any essay to write? The introduction. How do you write the introduction? You have to paraphrase the sentence, and the second sentence, 2-sentence intro pattern we are following. And the second sentence should tell the examiner what you are going to put in this essay, what you are going to write in this essay. If you are able to do that, your introduction is good enough. Okay. And that in a problem solution essay, just telling the examiner what you're going to write, that you are going to write the problems and the solutions, is considered a good thesis statement. You do not need to write enumerate the problems and solutions. Okay, इसमें स्टैंड यही है कि आपने एग्जामिनर को बता दिया है कि आपने इसमें प्रॉब्लम्स भी लिखनी है और सॉल्यूशंस भी. अगर आप क्लैरिटी से ये बात बता पाओ, योर इंट्रोडक्शन इज गुड. ठीक है, ये समझ आ गई इतनी बात जितनी मैंने बोली है? Yes, ma'am. Okay, so topic है nowadays older people who need employment have to compete with younger people. What problems does this cause and what are the solutions? Okay, so how do you write? अब पहले तो ये बताओ कि जो older people को compete करना पड़ रहा है, ये कोई कह रहा है कि ये fact है? ये guess करके बताओ. It is a fact. Fact. It is a fact. जब कोई चीज फैक्ट होती है, अगर कोई कुछ कह रहा है फिर लिखोगे इट इज बिलीव्ड बाय सम, पर अगर फैक्ट है तो क्या लिखोगे? इट इज irrefutable. हाँ, इररिफ्यूटेबल लिख सकते हो, अनडिनाइबल लिख सकते हो. It is अनडिनाइबल fact. होता है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता. It is undeniable, irrefutable. It is That fact. older people who need employment have to compete with younger people. So it is undeniable that Younger people. that the elderly that the टाइप होना बंद हो जाता है, that the elderly have to face increasing competition Along with भी लिख सकते हैं ना, along with younger people. From the youth in the workforce. ठीक है, हम along with the younger people नहीं कर सकते. along with the, उनके साथ साथ. कंपटीशन किसके साथ है? along क्यों आएगा? Okay, have to face competition from the youth. Ma'am, that is missing. Ma'am. Yeah, ma'am, we need to mention somewhere work or employment or something related to work. Yeah, something related to work. Yes. अब ठीक है सेंटेंस? Yes, ma'am. पैराफ्रेजिंग. Yes. ओके, अब जो सेकंड सेंटेंस है ना, वो आप ऐसे लिख सकते हो, इन दिस एसे आई विल एन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू दिस. अब ये मेरे को ये बताओ, कॉज इफेक्ट ऐसे है कि प्रॉब्लम और कॉज सॉल्यूशन ऐसे है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे? Cause solution. Cause solution. ये मैंने जब थोड़े दिन पहले कराया था, तब भी मैंने आपको कराया था, ये कॉजेज नहीं मांगे हुए. अगर कॉजेज लिखने लग जाओगे तो आपका एसे के बैंड्स को उड़ जाएंगे. This is problem solution. Problem इफेक्ट्स solution. मांगे हैं. उन्होंने पूछा है ये जो सिचुएशन है ये कौन सी प्रॉब्लम्स कॉज कर रही है, तो क्या मांगे आपसे? इफेक्ट मांगे हैं कि कॉजेज Effect. मांगे हैं? Effect, ma'am. हाँ, अगर आपने कॉज, उस दिन भी बच्चों ने ये गलती करी थी. मेरे को 1-2 बच्चों ने बोला था कि मैम इसमें कॉजेज देने हैं. कॉजेज नहीं देने हैं. ओके, यही चीज आपको समझनी है. ठीक है, इसमें इफेक्ट्स मांगे हैं.
So अब आप line लिखोगे that in this essay I will discuss the effects caused due to this situation and suggest some ways to Mitigate some problems. mitigate the problem. या आप ऐसे लिख सकते हो, which is a more refined and sophisticated way to write. लिख सकते हो, this situation is causing challenges. देखो वो words भी नहीं डाले मैंने. Is causing challenges for both. दोनों के लिए challenges हैं, है ना? For both क्या, the older and the younger workforce. And can we write both generations? Generations नहीं जच रहा. Okay. Both the age groups. हाँ, both age groups लिख सकते हो. But some steps Can be taken. to Mitigate. to tackle the problem, address the problem, to mitigate the tackle problem. To overcome the problem. these problems. हाँ, to overcome these problems. Or ma'am, can we write to ease the problem? To ease these problems, बिल्कुल. मैम एलिवेट लिख सकते हैं? Alleviate लिख alleviate is a सकते हो, better alleviate. Spelling गलत मत कर देना. Elevate नहीं है word, alleviate है. Okay, elevate तो उठाना होता है ऊपर. Okay. तो अब मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि वर्ड्स इजी रखो अपनी पॉकेट में, जिनके आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो. ओके. ये मेरे पार्टिसिपेंट्स कहाँ चले गए? ओके, आ गए वापस. I couldn't see the participants. Okay, now this is the introduction. This is the introduction. Okay, अब हमने skeleton में conclusion लिखना है पहले. ठीक है? Conclusion में कुछ नया नहीं लिखना. आपने वही लिखना है जो आपने intro में लिखा है, और थोड़ी word play करना, थोड़े words different कर लेना. तो मैम nowadays जो दे रखा है these days it is and we'll have that these days only लिखे जाएगा. इन these days कर सकते हो, नहीं भी करो तो भी चलेगा. ठीक है, कर सकते हो, वो मना नहीं. बड़े बड़े तरीके लिखने के. ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. ये है 40 words. ठीक है, अब हम conclusion लिखेंगे. हाँ जी, हाँ. Can we write as in this essay, I intend to discuss the reasons of this phenomenon? Reasons नहीं देने इसके. दिव्या, हाँ. reasons कहाँ मांगे हैं? Where are the reasons? Where have the reasons been asked? Problems. हाँ, caused by this. आप reasons नहीं लिखते ना. हाँ, you can write what I can understand what you are asking. You can write that. This is another way of writing that sentence, which is not very common, and definitely it will create an impression. So you can write this also. Isn't it easy? Yes, ma'am. तो थोड़ा change कर दो. Yes, वो तो ma'am. सब बच्चे लिखते ही हैं. Everybody writes that, right? Sure, ma'am. So you can write this. Now we come to the conclusion. Conclusion में लिखो to sum up. To sum up, competition between both age groups for the jobs. हम लिखा नहीं जा रहा है. Oh. Yeah, what happens? I must know what happens here. Why I can't write? For the jobs will continue
Let me give dictation to it. To be more intense, it's not listening to me. Will continue to be more intense. Tense, but some steps I can't write. Just wait. Tense. But some steps at the government and individual level can help to lessen the severity of the situation. Okay, now this is the conclusion, and the conclusion is how many words? It is 35. So you've written 75 words altogether. Okay, just in the intro and the conclusion, 75 words are done. Okay, now see, if you make a lengthy intro and a lengthy conclusion, you are writing how many words will you leave for your essay to be done? Okay, so don't write a very lengthy intro and conclusion. Okay, now you have to frame the first sentence of all the body paragraphs that you are going to put in this. So in a problem solution essay, you can have one paragraph of problems and one of solutions, two paragraphs of problems and one of solutions, one paragraph of problems and two of solutions. Anyway, it is correct. Okay, you just have to plan how to write. So you can make a 4-para essay by writing the problems in one paragraph and the solutions in one. Okay, you can write a 5-paragraph essay by writing problems in 2 and solutions in 1. You can write a 5-paragraph essay with problems in 1 and solutions in 2. So you can write any ways you like. And in this essay, the plan which Indrup has made in the essay that is given in the book is, in one paragraph, he has written the problems faced by the elderly. In one paragraph, he has written the problems faced by the youth. And in the third paragraph, he has given the solutions. Okay, so he has made a 5-para essay, and this is how he has managed to make the paragraphs. So first paragraph, there will be problems faced by the elderly, second paragraph, problems faced by the youth, and third paragraph, the solutions. So your frame, your skeleton should be clear to the examiner. Now in the paragraph, you have to write the problems faced by the elderly. Okay, so how can you start that? You can say, on the one hand, right? Ma'am, I have a query in conclusion. Yes. Ma'am, like you have generalized in the conclusion by government and individual level. So we have to mention that somewhere in our body Yes, paragraphs you as can well, write. That right? is why I mentioned it. Basically, I knew what I have written. So that is why Okay. I mentioned it. Okay, you can say that. If you So haven't ma'am, said that, without just write. Many steps can be taken. Don't say like okay. that. Don't specify. Okay. But On the ma'am, one we have hand, to हाँ, मैम मतलब पहले तो प्लानिंग तो कर लेना पड़ेगा ना व्हाट वी विल राइट इन बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 और 3 हाँ, देन वो ओनली वी कैन सम अप राइट बिल्कुल बिल्कुल अगर आप प्लान करोगे तभी आपका 7 या 7+ का essay निकलेगा. If you start writing without a plan, you will never be able to write a 7+ essay. Okay, you should always make a plan. Spend 2, 3, 4, 5 minutes on the plan. That will be time saved later on. Time spent Yes. on making the plan is ultimately time saved. Okay. So on the one hand, you in this paragraph, I'm going to put the problems faced by elderly. You can just write in very simple words. There are many problems faced by the elderly at the workplace. Okay, but Indrup has written on the one hand,
the competition among the youth and the young and the old workers. Workers can have troubling effects on the elderly. ठीक है? मैम मैं लिख नहीं गया। लिखा नहीं हुआ। On the senior workers. Okay. So this is about troubling effects on the senior workers. Now, can you fill in this whole para? Otherwise, what effects do you think senior people feel? I'm not going to write them. That will I'm just going to teach you how to make the skeleton of the essay. Okay. This is the first line of the first body paragraph. And this first sentence should tell the examiner what this paragraph will hold. If you are able to do that, it is a very nice body paragraph. It's a very nice topic sentence. Topic sentence is the first sentence of the paragraph, which tells the examiner what is going to be there in this paragraph. Got it? अब इस लाइन को पढ़ के पता चल रहा है इस पैरे में क्या डालने वाली हूं मैं? पता चल रहा है? बताओ. Say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And is that and second question मेरा, and is that जो इस पैरे में डालने वाली हूँ, is that what is asked in this essay? Yes. Yes. So it is a 7 band plus start of the body paragraph. Okay. Same question for the introduction. ये introduction बताती है मैं पूरे essay में क्या लिखने वाली हूँ. Does it tell? Yes, ma'am. Yes, And is this what has been asked in the essay topic? Yes. Yes. So this is a 7 band plus introduction. Okay. अब second paragraph की starting कैसे करोगे? On the other hand से कर सकते हैं. On the other hand. Very good. On the other Conversely, hand, on the contrary. नहीं, on the contrary कभी मत लिखना. मैं आपको बताती हूँ क्यों. On the contrary होता है, अब अच्छे से समझ लो इस बात को, because this is a mistake which most students do. ऊपर के पैरे में अगर कोई चीज लिखी है जिसको मैंने अगले पैरे में बोलना है कि जो ऊपर किसी ने ऐसे बोला है वो गलत है, फिर मैं लिखूंगी ऑन द कॉन्ट्ररी ये बात सही है, वो तो गलत है. समझ गए? तो ऑन द कॉन्ट्ररी कितना गलत हो जाएगा, आप समझ आ गया आपको? ऊपर वाले चीज को आप लिखने के बाद गलत बता अगर मैं ऊपर वाले पैरे में लिखती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं चॉकलेट बहुत नुकसानदायक है, मैं बताती हूँ वो लोग कहते हैं नुकसानदायक है, और मैं अगले पैरे में लिखूं ऑन द कॉन्ट्ररी आई बिलीव दैट चॉकलेट इज फुल ऑफ बेनिफिट्स. समझ गए? तो मैं ऑन द कॉन्ट्ररी कह रही हूँ कि वो गलत है, ऑन द कॉन्ट्ररी इसके तो फायदे ही फायदे हैं. समझ गए? Like discusses में आता है कि some people are thinking this and others are thinking opposite है, तो वहाँ पे हम डाल सकते हैं on the contrary? नहीं, उसमें भी नहीं डाल सकते हो. मेरी आप एक बात समझ लो, ऑन द कॉन्ट्ररी 90% ऑफ द टाइम आपका आधा बैंड या एक बैंड एक्स कर देगा, एक्स कुल्हाड़ी मार देगा. अब आपकी चॉइस है, आपने ये लिखना है कि सिंपल ऑन द अदर हैंड लिखना है, जो कि बहुत अच्छा है. Yes, जो कि हर जगह सेफ है. समझ गए? क्योंकि आप उसमें क्यों नहीं ऑन द कॉन्ट्ररी लिखोगे, मैं वो भी बता देती हूँ. ऑन द कॉन्ट्ररी तब आएगा जब ऊपर वाले पैरे के बाद जो अगला पैरा है वो आपके व्यू का है और आप कह रहे हो कि वो गलत है, ये सही है. पर ऑन डिस्कस ऐसे में दूसरा पैरा है दूसरे लोगों के व्यू का, वो ये नहीं कह रहे पहले वाले गलत है,
वो अपना व्यू दे रहे हैं, समझ गए? इसका यूज ऑल्दो के साइड हो सकता है ना, जैसे ऑल्दो चॉकलेट इज गुड बट कोमा बाकी फिर लिख देने की बेनिफिट्स आर फार मोर। किसमें डालोगे बेनिफिट्स और जैसे आप ये कनेक्टर बता रहे हैं ना, कंटेंटरी बाय जो, द कॉन्ट्ररी? यस मैम। मैंने ऑन द कॉन्ट्ररी के बारे में क्या बताया? मैंने बताया कि अगर आपने उसको यूज करा तो कुल्हाड़ी लग जाएगी एक बैंड को। अगर आप 6 वाले हो तो 5 लाओगे, 7 वाले हो तो 6 लाओगे। अब आपने कुल्हाड़ी चलवानी है। नो नो मैम। हाँ, तो फिर क्यों उसका उसी को क्यों डिस्कस करी जा रहे हो? ठीक है, वो Okay. कहीं भी नहीं जा, बहुत कम सिचुएशंस में 95% मेरे स्टूडेंट्स रॉन्ग यूज करते हैं, तो मेरी शॉर्टकट टिप है उसको मत यूज करना। ठीक है? Okay. हाँ तो मैम ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड सारे हाँ। ऐसे टाइप में वैलिड है? हाँ, आपने एक ऐसे लिखना है ना वहां पे। आपने 10 तरीके बताने एग्जामिनर को, आपको एज ये भी आते हैं। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं तो सी सिंपल। या ऑन अग्री, द अदर हैंड इज वेरी सेफ। इट इज इजी टू रिमेम्बर हाँ, कि और कॉन्ट्ररी यूज आप नहीं एक और करना। मेथड, 2 मेथड में सिखाती हूँ। पहला जिसमें कंसेशन देते हो, एग्री डिसएग्री ऐसे में, उसमें एडमिटेडली से शुरू कर लो, और दूसरे पैरे को हाउएवर से शुरू कर लो। समझ गए? दैट इज ऑल्सो गुड, और ये भी ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी तो बिल्कुल नहीं जच रहा यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है? मैम यूजली प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेस में एक पैराग्राफ हम एक अगर सपोज दो, जैसे यहाँ पे यंगर और एल्डर की बात हो रही है, तो हमने एक पैराग्राफ में यंगर की और एक दूसरे पैराग्राफ में एल्डर्स की बात कर ली है। तो यूजली प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेस में ऐसे ही आता है, मतलब एक पैराग्राफ किसी और का और दूसरा पैराग्राफ उस नहीं, ऑपोजिट। मैं पहले ये बात बता चुकी हूँ गरिमा, आप थोड़ा लेट आए हो क्लास में। मैंने सबसे पहले ये बात करी है कि इसमें सिर्फ 4 पैरे कैसे बना सकते हो, एक पैरे में प्रॉब्लम, एक में सोल्यूशन डाल दो। इसमें तो ऐसे था कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बोथ है, तो मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया। मैं जनरली 5 पैरा ऐसे में बिलीव करती हूँ कि वो बेटर स्कोरिंग जाता है बच्चों का। पर 4 पैरे वाले ऐसे में भी मेरे स्टूडेंट 7.5 बैंड लाए हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसकी जैसी आपके पास 3 पैरे नहीं बनते, 2 पैरे का ऐसे, 4 पैरे का ऐसे बना के आ जाओ, नो प्रॉब्लम। और सारे एसेज में नहीं ऐसे आपसे सेग्रीगेशन होगी, जैसे इसमें एल्डरली आ गए और यंग पीपल आ गए, हर ऐसे में नहीं होगी ऐसे। ठीक है? सो यू कैन मेक एन ओवरऑल 4 पैरा ऐसे, ओवरऑल 5 पैरा ऐसे, जो जैसे आपका प्लान बने, अच्छा सा प्लान निकले, उस वे में बनाना। ठीक है? ओके मैम, ओके। मैम इफ यू आर मेकिंग एल्डरली एंड यंग पीपल का अलग से पैराग्राफ, देन व्हाट लिंकर वी कैन यूज लाइक स्टार्टर? ऑन द वन हैंड वन हैंड एल्डरली के ये प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ यंग पीपल हाँ। के ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशंस वाले में तो आपने कुछ भी नहीं देना होता। ओके, वो तो फर्स्ट लाइन, आप सॉल्यूशन में थोड़ी ऑन द अदर हैंड दे दोगे, ऑपोजिट थोड़ी बता रहे हो किसी चीज का। ठीक है? या आप सिमिलरली भी कर सकते हो। सिमिलरली द यंग पीपल आल्सो फेस प्रॉब्लम्स, इसमें इस ऐसे में। ओके, यू कैन डू दैट आल्सो। या है ना? अच्छा, अब हम अगले पैरे का कैसे शुरू करेंगे? ऑन द अदर हैंड, कॉमा, द यंग ग्रेजुएट्स, यूथ भी बोल सकते हैं ना, यूथ। हाँ यूथ, हाँ, may also feel may also face certain problems कर सकते हो, फुल स्टॉप। पर इंद्रूप ने ऐसे लिखा है, उसने पॉइंट डाल दिया है, may also feel unmotivated and frustrated as the senior job candidates have rich experience. मैम म्यूट कर दो। Thank you. May also feel
आप छोटा सेंटेंस बनाना चाहते हो ना, तो may also feel may also face certain challenges. वैसे इतना बड़ा था नहीं, सही है। Issues. ठीक है, they feel unmotivated and frustrated as their senior job candidates have richer experience. ये मैंने दूसरा सेंटेंस अभी लिख दिया, नहीं भी लिखती तो चलता, वो आपने डालना है पॉइंट। अब यहाँ तक आपके वर्ड्स हो गए हैं 73 और ये 30 वर्ड्स थे, तो 103 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं ऐसे के, 35 108 वर्ड्स हो चुके हैं। अब जो थर्ड पैरा है जिसमें अपने सॉल्यूशंस देने हैं, उसमें ऑन दी अदर हैंड मत करना, ओके? किसी किसी जगह पे हाउएवर चल जाता है, हर जगह हाउएवर भी नहीं चलता, तो द सेफेस्ट इशू इज कि सीधा शुरू कर दो, सीधा जैसे इंद्रूप ने अपने ऐसे में शुरू करा है, these problems, सीधा लिख दें, there are many solution of these problems. हाँ, these problems can certainly be solved ये कैसे बताएं, solved by some policies of the government and steps at individual level. By some policies. Actually, क्या meaning है यहाँ पर मैम? क्या? Certainly का meaning? Surely. And steps. Okay. Ma'am, can we write down by the government and corporates? इतना लंबा हो जाएगा ना otherwise sentence. हाँ, by the government and the people कर दो बस, ठीक है? मैम ये आपने मैम जो आपने कैन हैव ट्रबलिंग लिखा हुआ है ऑन द वन हैंड वाली साइड में, वो नीचे है ऑल वर्कर्स कैन हैव ट्रबलिंग इफेक्ट, तो मैम आपने कैन हैव और ट्रबलिंग क्यों यूज किया है यहाँ पे वर्ड मैम? Can have troubling effects mean जो ट्रबल करने वाले इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सीनियर वर्कर्स पे, सीनियर के नेगेटिव इफेक्ट्स। हाँ मैम यस मैम, वो मीनिंग तो समझ लग रहा है, लेकिन मैम मुझे वो समझ नहीं आया सेंटेंस फॉर्म में जो मैं करूंगी, तो मैम ट्रबलिंग जैसे आपने वर्ड यूज किया, ओल्ड कंपटीशन है, वो ओल्ड वर्कर्स के साथ जो है उसका ट्रबलिंग इफेक्ट्स जो है उन पे आ सकते हैं, जो खराब करने वाले इफेक्ट आ सकते हैं। मैं बता सकता हूँ उसका। हाँ। ट्रबलिंग इसलिए यूज किया है क्योंकि जो कंपटीशन है वो अभी भी चल रहा है, वो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। इट्स अ कंटिन्यू, दैट्स व्हाई आईएनजी आया है इसमें। मैम लेकिन मैम जब कैन हैव हम हैव यूज करते हैं उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो वो था यहाँ पे हैव के बाद मैंने वर्ब नहीं लगाया, ये नाउन है। यस मैम, इफेक्ट्स नाउन है मैम। हाँ तो फिर ट्रबलिंग इफेक्ट्स उसका एडजेक्टिव है, वर्ब कहाँ है यहाँ पे? ठीक है मैम, वर्ब तो है ही नहीं। आई कैन हैव माई ब्रेकफास्ट, माई ब्रेकफास्ट ईडी फॉर्म है, कोई वर्ब है यहाँ पे? नहीं मैम नहीं है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, जब वर्ब आ ही नहीं रहा तो फिर किसकी थर्ड फॉर्म लगानी है? यस मैम, ठीक है मैम। कैन हैव ट्रबलिंग इफेक्ट्स ऑन द सीनियर वर्कर्स, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ ये हो गया। अच्छा अब ये देखो आपके 140 वर्ड्स हो गए हैं, आपको कितने वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है? 250 का मिनिमम, ठीक है? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे का ऐसा स्केलेटन प्रैक्टिस कर लो 8-10 ऐसे लिख के, तो अगर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे आए तो 6 से कम का किसी हालत में जा सकता है ऐसे? बताओ मुझे। नो मैम। हाँ तो ये दिस इज द मेथड यू हैव टू वर्क, दिस इज स्मार्ट स्टडी। जो स्मार्ट स्टडी है ना, जो बच्चे स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, 10 तरीके ढूंढेंगे। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी कर लें, वहां 10 ऐसे लिखने हैं आपने नहीं ना, एक ऐसे लिखना है। सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे के सिमिलर सेंटेंसेस कर लो, हर एक में ये नहीं चलेंगे पर सिमिलर 4, 6, 8, 10 ऐसे कर लोगे ना, आपको एक पता चल जाएगा, अच्छा ये कर सकता हूँ, ये अब मेरे को बिल्कुल ऐसा ऐसे आ गया, आई राइट दिस,
एंड आपके 140 वर्ड्स तो आपके पास पहले से ही प्लान्ड है, आधे से ज्यादा ऐसे ऑलरेडी डन है इन द स्केलेटन। ओके, ये स्केलेटन है, अभी हमने स्केलेटन लिखा है, अब हम अगले ऐसे का स्केलेटन बनाते हैं। पहले ये बताओ आप लोग इस क्लास से ये थोड़ा बोरिंग तो नहीं लग रही आपको? नहीं मैम, नहीं मैम, मैम ये क्लास तो इंटरेस्टिंग बहुत है, एंजॉय नहीं कर रहे मैम हैं। इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छी है मेरे को मैम, ये जो- बहुत अच्छी है पूरा मैम, मैम और- क्रक्स मैम यही हमें भी है। सोच, हमें वी आल्सो फोकसिंग ऑन आवर माइंड, हमें भी हाँ सोचने का थोड़ा सा वो मिल रहा है, वरना वो तो लिखा मैम हुआ हम होता है। कॉज सॉल्यूशन ऐसे ही आज कर रहे हैं, सो विल गेट ओवरऑल आइडिया की। हाँ, तो आपने तो मुझे आइडिया दे दिया, अब मंडे को मैं आपको ऐसे ही करा दूंगी, एग्री डिसएग्री और हाँ यस मैम, ये Yes, ज्यादा ma'am. बेटर Yes, है। ma'am. लेके हाँ. ऐसे ही मैम ये पूरा पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव सिलेबस डेवलपमेंट, मिल तो जाएगा। ये पूरे एक हफ्ते में नए बच्चों के लिए सारे ऐसे कवर कर दूंगी। हाँ मैम ठीक कर है? लो, हमारा हाँ 4th मैम को प्लीज। एग्जाम भी है। हाँ, आपके लिए बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज अ गुड वे, और मेरे को भी लग रहा है कि आप, मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसे करा के भी आपको। ठीक है, अच्छा अब ये हाँ मैम, देखो, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है, बिकॉज चलो वी नो बिल्डअप द होना डिफरेंस। चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। अभी हमारी एक स्टूडेंट ने आज मुझे बड़ा अच्छा मैसेज डाला है, उसने ना पीटी का पेपर दिया, मुझे कह रही है पीटी कराते हो, मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा यार यही होता है, इंग्लिश है उसमें 20 टास्क हैं छोटे छोटे, तो मैं 1-on-1 करा नहीं सकती हूँ, पर राइटिंग ऐसी है, ग्राफ भी ऐसे ही बोलना है, ऐसे भी ऐसे लिखना है, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, नेट से मटेरियल लेके, किसी से कोचिंग नहीं ली, एंड शी गॉट 75 मार्क्स इन पीटी, जो 7.5 बैंड के बराबर है, विच इज वेरी गुड। ओके, तो यही आइल्स की तैयारी करके, यही राइटिंग आइल्स की करेक्शन करा के, शी इज डन वेल। आज उसने बड़ी खुश होकर मुझे मैसेज भेजा, मैं कहा चलो गुड। ओके, ये देखो, द वर्ल्ड ऑफ वर्क इज चेंजिंग रैपिडली। अब ध्यान से ऐसे पढ़ो, वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की दुनिया चेंज कर रही है तेजी से। वर्किंग कंडीशंस टुडे, आज जो वर्किंग कंडीशंस हैं, दे आर नॉट द सेम एज बिफोर, वो पहले जैसे नहीं हैं। एंड पीपल नो लॉन्गर, पीपल अब बिल्कुल नहीं करते रिलाई, डिपेंड ऑन टेकिंग वन जॉब ऑफ लाइफ। पीपल रिलाई नहीं करते एक जॉब पे, क्योंकि वर्किंग कंडीशन सेम नहीं है, एक जॉब पे रिलाई नहीं करते, मतलब एक जॉब के सहारे नहीं बैठे रहते। डिस्कस द पॉसिबल कॉजेस फॉर दीज चेंजेस एंड गिव सजेशंस ऑन हाउ पीपल शुड प्रिपेयर फॉर वर्क इन द फ्यूचर। अब इस ऐसे में कॉजेज मांगे हैं कि क्यों लोग एक जॉब पे नहीं रिलाई कर रहे। ओके, क्यों वो मतलब और जॉब्स भी देख रहे हैं, और वर्किंग कंडीशंस जो है पहले जैसी नहीं रही, तो ये जो चेंजेस हैं इनके क्या कारण है, ये जो बदलाव आए हैं काम की दुनिया में, इसके क्या कारण है, और सजेशंस दो कि फ्यूचर में लोग वर्क के लिए कैसे तैयारी करें। ठीक है, सॉल्यूशंस नहीं मांगे हैं, पर फ्यूचर में कैसे तैयार, एक तरह से सॉल्यूशंस ही मांगे हैं, बट आपने उस वे में इसको लिखना है। ठीक है, अब आपने इसकी इंट्रोडक्शन कैसे, ये देखो, ये कोई कह रहा है कि ये फैक्ट है, फैक्ट है मैम, ये फैक्ट है, समझ आ रहा है ना, ये फैक्ट है। ठीक है, अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं और इसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इट इज अनडेनाइबल। हाँ, इट इज अनडेनाइबल लिख दो, या इररिफ्यूटेबल लिख दो। It is irrefutable that, same meaning है इन दो words का। Okay, that the work scenario is changing, हम altering कर लो ना, चेंज की जगह altering भी कर सकते, changing at a fast pace। बहुत कुछ चेंज कर दिया तो एक वर्ड सेम भी रह जाएगा तो चलेगा। at a fast pace, rapidly को चेंज कर दिया मैंने। Okay, अलार्म रेट भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, at an alarming rate भी कर सकते हो। ठीक है, वो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, this essay shall delve into मैम आई थिंक अलार्मिंग कैन नॉट बी यूज ना, बिकॉज अलार्मिंग हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ कोई डेंजरस सिचुएशन पॉसिबिलिटीज है ना फ्यूचर में। हाँ, रैपिडली का फास्ट पेस ही चलेगा, अलार्मिंग नहीं चलेगा। रेट अलार्मिंग है, ओके, रैपिडली तो अलार्मिंग रेट है, लिख भी सकते हैं, कोई इतना गलत नहीं है अमित। और वी कैन यूज ट्रेमेंडस, but it's not very good, it's better to be simpler here. Okay, okay, this right. essay shall delve into
shall delve into 2 वर्ड इकट्ठे आते हैं, डिस्कस के लिए यूज होते हैं. The possible causes and suggest causes for these changes. Sorry. Changes and suggest ways to prepare for work. Prepare for work in the coming time. In the time to come. प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे की इंट्रोडक्शन बनानी आपको आगे, 2 आपने ऐसे लिखे, थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि कुछ भी नहीं पढ़ा इसमें, तो ये बहुत इजी है, बना लेंगे. हाँ, ऐसे लग रहा है? हाँ मैम. Okay, to sum up, Structure is very clear for problem solution. for every essay structure is going to be clear. Let me do all the essays with you. Structure ही तो इंद्रूप का यही तो रहा है, उसने पीछे कोविड के जो पूरा लॉकडाउन था, he worked hard on this and he came up with all these structures, 15 sentence structures, and many students are being benefited. Okay, to sum up, although पता है मैं हमेशा कहती हूँ ये पढ़ाई जो है ना किसी भी फील्ड में करी हो वेस्ट नहीं जाती. फैक्ट है मैं पढ़ाई का कोई सी भी चीज आपने अगर कोई चीज सीखी हो तो वेस्ट कैसे चली जाएगी. So he is done industrial engineering dual masters, पर वो ये IELTS में नई खोजें कर रहा है, अपनी बना रहा है कंटेंट. So that is because he's you know studied well and you know so that studied in a US university में पढ़ा, interact करा लोगों से. Although there is no doubt that jobs are less secure. Jobs are less secure than the past due to various reasons. I believe people can prepare for this. Can prepare for this by being flexible regularly. Skills and having alternative income sources, right? अब ये हो गया आपका कंक्लूजन. ओके, इसमें मैंने क्या करा है, इसमें इंद्रूप ने क्या करा, उसने 3 सॉल्यूशन अंदर लिखे थे पैरा में, उन तीनों को इसमें इन्यूमरेट कर दिया. आप नहीं करोगे तो भी चलेगा. ओके, बट यू कैन डू इट. सपोजिंग यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, तो आप वही कर सकते हो ना, अंदर पैरे में जो मेन पॉइंट्स आपने डाले उनको इन्यूमरेट कर दो कि ये सॉल्यूशंस हैं. उसने 3 डाले हैं कि फ्लेक्सिबल हो जाओ, अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करो, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे, आपको जॉब से निकाल देंगे अगर आप अपडेटेड नहीं हो. ठीक है. एंड हैविंग ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज, और अपनी कोई और भी इनकम सोर्स रखो. ठीक है, ये 3 उसने सॉल्यूशंस डाले. अब ये इंट्रो कंक्लूजन और ये स्केलेटन करने का ये फायदा आपको होगा
कि अगर आपने ये स्केलेटन मेरे साथ स्लो मोशन में कराया, इसको स्लो मोशन बोलूंगी मैं, तो आपको ऐसे आपका वैसे ही आपसे लिखा जाएगा। अब ये समझ आ रहा है आपको पॉइंट? ठीक है मैम हाँ हाँ मैम एक डाउट है, ऑल्दो का मैम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह ये सेंटेंस ऑल्दो यूज मैंने किया ऐसे बनाया ना, देखो हिंदी में चाहे इसके जो आजकल जॉब्स लेस सिक्योर है पास्ट की बहुत कारणों की वजह से, मेरा मानना है कि चाहे वो सिक्योर है, मेरा मानना है कि इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं लोग, फ्लेक्सिबल होके, स्किल्स को अपडेट करके और ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स रख के। जैसे कई लोग ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स है ना, घर में एक कमरा दे दिया, चलो किराया आ रहा है, और यहाँ कुछ छोटा मोटा इवनिंग में कुछ और काम कर लिया, थोड़ा सा कहीं पे भी कोई प्राइवेट कुछ भी, तो ये ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स एक रखे बंदा, तो फिर कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक जॉब चलेगी तो दूसरी है, दूसरा कुछ तो आ रहा है घर में। कंक्लूजन में आई बिलीव लिखना जरूरी है इसमें, बिकॉज हमने आगे वाले उसके बिना भी चलेगा, उसके बिना भी, क्योंकि सारा ही आपका देखो, द होल एसे इज योर्स ओनली ना, तो नहीं भी लिखोगे चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है तो मैम इंट्रो में कहीं पे मेंशन करना जरूरी नहीं है, दिस इज लाइक दिस ऐसे इज एंटायरली व्हाट वी बिलीव इन। दिस ऐसे देखो, ये जो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है ना, आप लिख रहे हो ये प्रॉब्लम्स हैं और ये कॉजेज हैं और ये सॉल्यूशंस हैं, तो आपके ही व्यू पॉइंट चल रहा है ना, ये समझो। ओके किसी के व्यूज थोड़ी लिख रहे हो, अपने लिख रहे हो। इसमें कोई अल्टरनेटिव व्यू है ही नहीं। हाँ ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ठीक है तो सिर्फ डिस्कस ऐसे में होता है किसी का व्यू, और किसी में नहीं होता। जो अब इंद्रूप ने जो मेथड निकाला ना, किसी भी ऐसे में सम पीपल अदर पीपल नहीं करना एक्सेप्ट फॉर ए डिस्कस, बस बाकी सारे ऐसे आपके व्यूज है, ऑल एसेज ऑल। ओके मैम एक क्वेश्चन है मुझे, मैम जो लाइक अपना ओपिनियन देना रहता है, तो ये ओपिनियन ऐसे के अलावा कहीं नहीं देना है जब तक के पूछा नहीं है, सिर्फ जहाँ पे पूछा वहीं पे अपने को ओपिनियन देना है ना मैम? नहीं ओपिनियन डिस्कस में भी देना है आपको। अच्छा हाँ ओपिनियन देना ही देना है आपको, स्टैंड लेना है, अदरवाइज आपके 7 बैंड नहीं आएंगे इंट्रो में। तो इंट्रो में स्टैंड लेना ही लेना है मैम, हर ऐसे में। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में यही लिखना इज इक्वल टू द स्टैंड। ओके मैम, एग्जामिनर को बता दिया ना कि मैंने ये सब डालना है, तो ये एक तरह का आपका स्टैंड है। ओके आप सारे पॉइंट्स नहीं डाल सकते हो इंट्रो में। ठीक है दैट्स इट। अब हम इसकी स्केलेटन पे आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ कैसे लिखोगे? मैंने क्या करा इस ऐसे में, देखो बेसिकली ऐसे पता क्या है कि वर्किंग कंडीशन सेम नहीं है, और लोग ना एक जॉब पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको क्या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। बेसिकली इट इज एन एसे ऑन जॉब सिक्योरिटी, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। बेसिकली इट इज एन एसे ऑन दैट कि पहले क्या होता था, किसी की नौकरी लग गई तो नौकरी लग गई, फिर वो उसको सिक्योरिटी हो जाती थी कि मेरी नौकरी मुझे कोई नहीं निकालेगा। आजकल सिक्योरिटी रही नहीं है। आप कभी भी देखो, जब रिसेशन आया था यूएस में, बहुत लोग ऐसे थे जो अगले दिन ऑफिस गए और वहां लिखा हुआ था योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर नीडेड, दे वर लेड ऑफ ऑल ऑफ ए सडन। ओके तो ये सिक्योरिटी नहीं है लोगों को। आजकल सिक्योरिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे समय बीत रहा है सिक्योरिटी कम हो रही है। ठीक है तो बेसिकली आप क्या लाइन बनाओगे? पहली लाइन, देयर आर ए नंबर ऑफ रीजंस, क्योंकि आपने रीजंस डालने हैं ना। There are numbers of reasons that people don't have the job security. There are a number of reasons for the lack of job security. ओके फिर फर्स्टली सेकेंडली करके आप रीजंस डाल दोगे। तो ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस, ये पता चल गया आपको। उसके बाद आप लिखोगे द फर्स्ट रीजन इज, या फर्स्टली कुछ भी लिख दोगे। ठीक है सेकेंड पैरे का स्टार्ट क्या करोगे? फर्दर मोर, मोर ओवर, या फाइनली। अगर इसके ऐसे में एक पॉइंट रह गया था तो फाइनली करके उसने वो वाला पॉइंट डाल दिया है, तो ऐसे भी चल सकता है। फाइनली या फर्दर मोर करके डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फर्दर मोर मतलब इसका क्या मतलब है? फर्दर मोर का कि मेरे अभी और रीजंस आ रहे हैं To continue. हाँ हम एडिशनली भी डाल सकते हैं। इन एडिशन, एडिशनली बीच में चलता है पैरे के। पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए कम ही अच्छा लगता है। ओके हाँ ठीक है मैम, ये जो सर ने ये पैराग्राफ लिखवाया, एक बार आप उसको अपने जिस्ट में नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे? थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में। फाइनली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, हाउ ग्लोबलाइजेशन।
देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन क्या है, पीपल आर कमिंग क्लोजर, इकोनॉमीज आर कमिंग क्लोजर। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना कनेक्टिविटी बढ़ गई है, और जो कंपनीज है ना वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के तक सीमित ही नहीं है एम्प्लॉयज लेने के लिए, वो किसी को भी कहीं पे भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो उनके अपनी कंट्री के लोगों की जॉब सिक्योर नहीं रही। अब जैसे यूएस में बैठी है कंपनीज, यूएस में बैठी है, मतलब इंडिया में भी नहीं उन्होंने ब्रांच खोली, फिर भी इंडिया के लोग इनके लिए काम कर रहे हैं ना यहाँ बैठे। यस तो फिर यूएस के लोगों की सिक्योरिटी कहाँ गई, जॉब वालों की कम हो गई ना। तो ये रीजन है, समझ आ गया रीजन? कंपनीज आर नॉट बाउंड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, वो उनको उनकी कोई दायरे सीमित नहीं है कि अमेरिका में उनकी कंपनियां, तो अमेरिका से ही बंदे ढूंढने पड़ेंगे काम करने के लिए, कहीं से भी ढूंढ सकते हैं जहां से उनको सस्ते बंदे मिले। और इसमें क्या है मैम, इसमें तो हम पर्टिकुलर एक जॉब सिक्योरिटी पे ही आके ना स्टक हो गए। हाँ तो जॉब सिक्योरिटी का ही ऐसे है ये। जॉब सिक्योरिटी देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस ना। हाँ बड़े रीजंस हैं, आपको एक दो रीजंस डालने अपने ऐसे में, आपने कोई थीसिस नहीं लिखना, आपने 250 वर्ड का ऐसे लिखना है बस। ओके, पिक अप 2-3 पॉइंट्स एंड उनको सपोर्ट करो, एक्सपैंड करो और सॉल्यूशंस उस हिसाब से डाल दो बस। दैट इज द आइल्स एसे। ओके, देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो, पर आप 1 2 3 उठाओ बस, अपना ऐसे बना दो, ठीक है। मैम इसमें जो लिखा है वर्किंग कंडीशंस टुडे आर नॉट सेम। हाँ तो वर्किंग कंडीशन सेम नहीं है एंड पीपल रिलाई नहीं करते, ये इकट्ठा है पॉइंट। वर्किंग कंडीशन में भी हम ये भी तो लिख सकते हैं ना मैम कि पहले ऐसा होता था गवर्नमेंट जॉब्स में कि उनकी पॉलिसी रहती थी कि दे आर परमानेंट एम्प्लॉयज, बट नाउ दे आर चेंजिंग द नॉर्म एंड दे आर मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज। हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो, So वर्किंग that is कंडीशन also सेम नहीं on है। the working बेसिकली इट इज Okay, बॉइलिंग, हाँ. इट इज माउंटिंग अप टू जॉब सिक्योरिटी ओनली ना, वही जा रहा है ना, है ना। But it is not related to working environment. तो कि, एनवायरमेंट इसका वही मतलब है, एनवायरनमेंट का वही मतलब है। ओके ठीक है ना, जो काम की दुनिया है। फिर फर्दर मोर, और फिर जो तीसरा पैरा आप क्या लिखोगे, देयर आर वेरियस स्टेप्स There are a number of reasons, सही है? There are number of reasons. there are a number of reasons, there are number of reasons गलत है। Okay, there are a number of reasons, there are various steps which people can take to better prepare for the changing work conditions, to prepare prepare भी ठीक है, to prepare better, better for the changing work conditions, to survive in current job culture. चेंजिंग, हाँ ये भी लिख सकते, टू सर्वाइव इन द करंट जॉब। फिर फ्यूचर का पूछा ना, करंट का पूछा नहीं है। फॉर द चेंजिंग वर्क कंडीशन, क्वेश्चन को पढ़ो। चलो अब ये ना फिर फर्स्टली सेकेंडली या टू बिगिन विद करके, अब देखो इसके कितने हैं, फिर भी इसके भी काफी वर्ड्स हो जाएंगे, 100 तो होने चाहिए। 104 वर्ड हो गए। अब 250 ऐसे में से 104 वर्ड, पिछले ऐसे में तो 140 हो गए थे, तो ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स आप मान लो कि आपका ना आधे से ऑलमोस्ट आधा ऐसे, आधे से थोड़ा कम या आधा ऐसे आपका स्केलेटन में कंप्लीट हो जाता है। ये आपको पता चल गया। इसमें तो हमने स्केलेटन ही बहुत छोटा रखा है, फर्दर मोर करके लाइन भी कंप्लीट नहीं करी है, कुछ भी डालना है। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? ये सेकंड एसे का स्केलेटन क्लियर हो गया? मैम एक क्वेश्चन था। मैम इन एसेज में ऐसा भी कंपलसरी है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल कोट करना होता है नेम के साथ में? ये ना क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो हमने एक बार इंद्रूप एंड आई हैड ए वेरी गुड डिस्कशन ऑन दिस। तो इंद्रूप ने पेपर दिया था, उसको बाय चांस ना यही वाला ऐसे आया था जब उसने एग्जाम दिया, जब उसने नया नया पढ़ाना शुरू करा। ही वांटेड टू नो वेदर व्हाट ही इज टीचिंग इज राइट, सो ही सेड मैंने एक बार पेपर देना है, एंड ही फिल्ड द एग्जाम एंड ही वेंट एंड सैट फॉर द टेस्ट। उसको यही वाला ऐसे आया जो आज हम अभी अब करके हटे हैं। ही गॉट दिस ऐसे, और मैंने अपनी बुक में ये गलत लिखा हुआ था, तो उसने बोला मम्मा ये तो जॉब सिक्योरिटी ऐसे आपकी बुक में गलत है। एनीवेज ही गॉट ए 7.5 इन राइटिंग एट दैट टाइम, बिकॉज उस दिन क्या हुआ, उसको
कॉलम ग्राफ आया और कॉलम ग्राफ लिखने में उसने आई थिंक 30 मिनट्स लगा दिए और कहता है मम्मा मैंने 30 लगाए हैं तो बच्चों को कितना टाइम लगेगा. सो आई हैव टू फाइंड अ वे कि ग्राफ राइटिंग उनकी 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाए. तो पहले उसने ग्राफ्स पे वर्क करा कि उनको छोटा कैसे करना है. तो उसने 10 सेंटेंसेस वाले वीडियोस ही केम अप विद दैट. और उसने अपने इस एसे में एक भी एग्जांपल नहीं डाली थी. मैं आपको ये बात बता रही हूँ. एंड ही गॉट ए 7.5 एंड ही गेव मच लेस टाइम टू द एसे. तो आपको आइडिया लग रहा है. और मेरे कई अभी मेरे स्टूडेंट्स ने एक स्टूडेंट का मुझे आया था फोन 7.5 बैंड थे. कहती मैम मैंने दोनों पैराज में एक एग्जांपल डाली है. एक और स्टूडेंट के 7.5 है. उसको मैंने पूछा कितनी एग्जांपल डाली. पूरे एसे में एक एग्जांपल डाली है. तो मुझे नहीं लगता अगर आपका एसे सही है और एग्जांपल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका बैड स्कोर. आप सपोर्ट कर रहे हो अपने पॉइंट को और अगर बिफिटिंग एग्जांपल है डालो. पर एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि पॉइंट ऊपर कुछ और है और एग्जाम्पल नीचे किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है. वो बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा. दैट विल बी रॉन्ग. राइट. तो अगर आपको बहुत कोई बिफिटिंग एग्जाम्पल है आपके पास वो डालो. ऐसे मत कुछ बना के डालना कि वो बिल्कुल साथ में जुड़े ही ना. बच्चे कुछ ऊपर पॉइंट कुछ होता है एग्जाम्पल कुछ होता है. वो तो फिर नेगेटिव हो जाएगा ना ऐसा एग्जाम्पल डालना. मैम हम लोग मेकअप तो कर सकते हैं ना एग्जांपल मतलब रियल बिल्कुल डेटा आप यूज बिल्कुल करने की तो बिल्कुल जरूरत बिल्कुल नहीं. यू हैव टू मेकअप. बट मेकअप भी मतलब सही करना ना. ये एग्जाम्पल शुड बी जो ऊपर आपने पॉइंट रेज करा है उसकी तरफ जाना चाहिए ना. या है ना. तो ये स्टूडेंट्स कई ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं कि ऊपर कोई पॉइंट है नीचे एग्जाम्पल किसी और चीज का दे रहे हैं जस्ट टू पुट इन एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल. ओके. हाँ वो गलत हो जाएगा. अब जैसे मैं आपको इस हिस्से में एग्जांपल देती हूँ. जैसे लिखा है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज आर नो लॉन्गर बाउंड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. फॉर इंस्टेंस अ कंपनी इन अमेरिका कैन हायर पीपल फ्रॉम इंडिया. एग्जांपल डल गया आपका. आपको एग्जांपल ऐसा नहीं बनाना है जैसे कोई कुकिंग कर रहे हो कोई चीज कर रहे हो बना रहे हो पूरा. दिस इज हैपेंड. ये भी एग्जांपल ही है एक तरह का. जो आपने पॉइंट रखा उसका एग्जांपल है. समझ गए ना. मैडम जी फिर आप जिवें अपना पॉइंट ਹੁੰਦਾ पॉइंट ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. पॉइंट है ना ਤੁਹਾਡਾ कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री है. फॉर इंस्टेंस ए कंपनी इन अमेरिका कैन हायर पीपल फ्रॉम इंडिया. ये एग्जांपल उदाहरण वजों जी अमेरिका जी पर्सनल ਆਪਾਂ पर्सनल लिखਣ ਡੈ ਬਨੇ कि ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ फ्रेंड ਦੀ एग्जांपल है अपनी. हाँ पर्सनल एग्जांपल से भी 7.5 बैंड आए हैं स्टूडेंट्स के. पर्सनल एग्जांपल्स आर अलाउड. सी व्हाट दे राइट इन द एसे. यूज एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस. नॉलेज का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा टीवी से अखबार से. एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल तो पर्सनली होगा ना. तो ये मैडम जी एग्जांपल नहीं बनती फिर नहीं लिखते हुए कोई चक्कर नहीं. नहीं लिखनी तो हाँ कोई चक्कर नहीं. मैं वही तो हुन समझाया इतनी लंबे भाषण देके. ठीक है नहीं सही नहीं मैं कहा आधे दिमाग से कि आप एग्जांपल लिख दी लिखनी सारे ऐसे बच्ची पे नहीं भी लिखनी होती है. नहीं देखो मैं तो एग्जांपल देने दा सौखा तरीका भी दसदा है ना. हां जी. हां नहीं यार सही है. सही हाँ बिल्कुल ठीक है. थैंक यू. हाँ जी कोई नहीं. अच्छा हुन अगला ऐसे करते हैं. ठीक है साडे कोल टाइम हैगा एक और ऐसे दा. ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ. ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ. ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਕਰ ਦਾਂਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਓ. ਜੀ ਜੀ ग्राफ दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ. ਠੀਕ ਹੈ. Some businesses find that their new employees lack in basic interpersonal skills such as lack of ability to work with colleagues as a team. Okay, what are the causes and suggest possible solutions. Also provide relevant examples from your experience. Okay, कुछ businesses है देखदियां ने कुछ businesses है देखदियां है कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ employees ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ basic interpersonal skills ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ. ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਸੇ. ਓਕੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੈਲੇਟਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ. Some businesses find it has been seen that इंज लिख सकते हो ये देखा गया है. ठीक है. It मैम इसमें नहीं आएगा. इसमें undeniable मैम और refutable. It is undeniable कि employees basic interpersonal skills lack कर देने.
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੀਨ ਬਾय ਸਮ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, irrefutable word ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਚੇਗਾ ਨਾ। Can we write nowadays few business you can say employers are finding some organizations are finding that their new recruits कहोगे ना recruits, तो मैम उसको कनेक्ट कर सकते हैं ना, it is undeniable that few businesses are finding हाँ ये ऐसे कर सकते हो, हाँ ऐसे कर सकते हो, yes that way you can see. So it has been seen, मैं जो इंद्रूप ने लिखा है उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, पर आप कर सकते हो। It has been seen that sometimes है ना, हमेशा नहीं है, तो फिर undeniable इतना नहीं जचता, वहां लिख सकते हो it is undeniable that sometimes some companies are finding this difficulty, ठीक है, ये वो जच रहा है अब, पर हमेशा नहीं ना हो रहा है। That sometimes new company hires that यहाँ पे hires verb नहीं है, यहाँ पे as a noun use करा है मैंने, okay? Hires means employees, new company employees, okay? Yes, new company hires lack basic interpersonal skills and cannot get along. हम इंटरपर्सनल की जगह कम्युनिकेटिव डाल सकते हैं। हाँ in a team. In a team, there are many reasons why this is happening, but this situation can be rectified या addressed कर दो, addressed with suitable measures. ये हो गया आपकी इंट्रोडक्शन टू सेंटेंसेस की, बिल्कुल सेम लाइंस पे बनी है ना जो मैंने अभी पिछले 2 एसेज में कराई है। सही मैंने क्या डिस्क्राइब कर दो जिससे आ क्या कि lack of basic interest and cannot get along with the colleagues. Cannot get along मतलब get along करना means किसी दे नाल उन्हां दा तालमेल ही नहीं बैठदा, colleagues दे नाल लड़ाई झगड़े करदे रहंदे ने, ठीक है। colleagues से देखो ਜਿਹੜੇ it has कई बारी ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। हिंदी में बोलिए ना प्लीज। सॉरी कई बार ये देखा गया है कि जो नए कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनमें बेसिक जो इंटरपर्सनल आपस में तालमेल करने वाली स्किल्स हैं, बातचीत करने की स्किल्स हैं, गेट अलोंग करने की स्किल्स हैं, भी आपस में उनकी एक साथ चल पाए, एक कंपनी में काम इकट्ठे कर पाए, वो नहीं है उनमें। दे कैन नॉट वर्क एज ए टीम। ओके देयर आर मेनी रीजंस व्हाई दिस इज हैपनिंग but the situation can be addressed with suitable measures. बहुत कारण है ये क्यों हो रहा है, but the situation can be addressed, इसको address किया जा सकता है, handle किया जा सकता है, tackle किया जा सकता है with suitable measures, ठीक है। typical discuss problem solution essay की intro है ये, ठीक है। अब हम लिखेंगे conclusion. So what will be the conclusion? To sum up, हाँ मैं ना कॉपी पेस्ट कर देनी है, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ओके ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਐसेस ਦੀ स्लोली कराती है, आई डोंट थिंक इट विल बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। Ma'am, can we write down to wrap up instead of sum up? वो मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ, ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हो,
पर Just a आपने thought. वहां एक ऐसे लिखना है और टू सम अप करके भी 8 बैंड आए हुए हैं बच्चों के। ठीक तो है मैम। एक क्या क्या करना है आपने नई नई चीजें सीख के, आप ये बताओ। ओके, दैट इज व्हाट आई से। अब वो चीज जो है ना, इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि जो जरूरत है उतना करो बस, दैट इज इट, फिनिश इट। ओके, summing up, it is irrefutable that many new employees face the problem of lack of interpersonal skills. वैसे ना interpersonal skills के कोई और synonyms है नहीं, तो मेरे को use करना पड़ा बार बार। And कम्युनिकेटिव believe me, होता है मैम, कम्युनिकेटिव स्किल्स, कम्युनिकेट communication skills and interpersonal is आपस में तालमेल वाली, थोड़ा different है। तो मेरे को लगता है कि अगर आपके just for the sake of using a synonym, अगर word बहुत अच्छा नहीं है, I would rather use the same word. ओके मैम, ठीक है, due to certain factors. Nonetheless, this can be handled by successfully by elaborate interviews before recruitment. अच्छा, इसमें भी उसने वो कर दिए हैं, enumerate कर दिए हैं solutions conclusion में। तो 2 essays में आपको enumerate करने वाला point सीख लिया, तो इसको कैसे handle कर सकते हैं, यही उसने उस पैरे में यही points डाले होंगे। by elaborate interviews before recruitment, recruitment से पहले elaborate interview लो। elaborate means बहुत लंबी, 40 मिनट्स की, घंटे की, 1.5 घंटे की इंटरव्यू चलती है कैंडिडेट की। मैम ये जो समिंग अप में जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, इट इज irrefutable that many new employees face the problem of lack of interpersonal skills. हाँ, तो मैम मतलब खुद ही में दे आर लैकिंग द इंटरपर्सनल स्किल, या तो सेंटेंस थोड़ा हाँ, yes, you have a नहीं है। point. हाँ, that many We can new write employees- employers face this problem, many that many new employees lack interpersonal skills. Now it is correct? हाँ, ठीक है, due to certainly you have a point there. Nonetheless, this can be handled successfully by elaborate interviews before recruitment, training after recruitment, or by increasing group activities in schools and colleges. तो schools and colleges में जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, तब भी वहां पे group activities ज्यादा कराई जाएं, तो interpersonal skills अपने आप develop हो जाएंगी, बड़े होके प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और आप देखो इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सब्जेक्ट होता है ना। हाँ, तो दैट इज दे हैव एडेड इट एज ए सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लम्स। मैम यहाँ nonetheless का मीनिंग? nonetheless means इसके बावजूद भी, बहुत फैक्टर्स हैं, इसके बावजूद भी इसको हम सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। nonetheless या nevertheless दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं यहाँ पे, however भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसी सेंटेंस में कंटिन्यू करना है, फैक्टर्स के बाद कॉमा डाल के बट दिस कैन बी हैंडल्ड भी कर सकते हो, फिर बट के बाद कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, फिर एक ही सेंटेंस बनेगा लंबा सा, ऐसे करके 2 बन गए। nonetheless का मतलब है इसके बावजूद भी, फिर भी। nevertheless मतलब मैम बट को अगर हमें यूज करना है एज अ सेंटेंस स्टार्टर, तो हम बट को ना सेंटेंस nevertheless स्टार्टर या कभी non- मत यूज करना, बट को एज नहीं ए नहीं, मतलब उसका कंजंक्शन रिप्लेसमेंट इज nonetheless और nevertheless। however is a better replacement। हाँ, ये कई जगह nonetheless भी जच जाता है, हर जगह नहीं जचता। तो मैम क्या डिफरेंस है nonetheless और however में? however is पर, उसकी ट्रांसलेशन होती पर, परंतु, और nonetheless is इसके बावजूद भी। अब ये ट्रांसलेट करके देख लेना कहाँ ये फिट होता है। ये सारे हैं फैक्टर्स, इसके बावजूद भी, इतने फैक्टर्स होने के बावजूद भी इसको हम सोल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैम सेम ही लग रहा है nevertheless, सेम ही है, nonetheless, मतलब however। काफी सिमिलर है, तभी तो इस जगह पे रिप्लेसेबल है, इंटरचेंजेबल है यहाँ पे। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, इसका स्केलेटन कंप्लीट करें और आज की क्लास रैप अप करते हैं। अब स्केलेटन बताओ, इसका फर्स्ट पैरे की फर्स्ट लाइन क्या बनाओगे? अच्छा, इस ऐसे में ना उसने एक पैरे में दिया है रीजन और दूसरे पैरे में 2 पैरास में सॉल्यूशंस दिए हैं। आप टोटल 4 पैरा का ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो 2 रीजंस ही हैं, तो द मेन रीजन करके आप शुरू कर सकते हो और फिर दूसरे रीजन को इन एडिशन या अनदर रीजन इज कर सकते हो। उसमें आप देयर आर मेनी रीजंस करके भी लिख सकते हो, या इसने इंद्रूप ने लिखा है द मेन रीजन फॉर द न्यू एम्प्लॉइज बीइंग डेफिशिएंट इन इंटरपर्सनल स्किल्स इज दैट। तो उसने पहला रीजन ये डाला है कि द मेन रीजन, उसने एक रीजन से शुरू कर दिया है।
reason for the new employees. Or ma'am, we can write the most significant reason. हाँ ऐसे भी लिख सकते हो. Being deficient in, lacking के लिए being deficient in interpersonal. Ma'am, can we write such skills? हाँ such skills, पर सच है ना, पहले सेंटेंस में आप एक तरह से रेफरेंट लिख रहे हो, तो रेफरेंट मैं कहती हूँ सच किसी चीज के लिए ना वो पूरा लिखना बेटर होता है पहली लाइन में अगर आपने लिखना है. The main reason for the new employees being deficient in interpersonal skills is that. ये पता है मेन रीजन उसने क्या लिखा है कि जब हायरिंग का टाइम आता है ना बस एक डिग्री देख के हायर कर लेते हैं. अच्छा IIT से पढ़ा है, टॉपर, चलो चलो रखो इसको. वो देखते ही नहीं है कि ये बंदा दूसरों के साथ काम कर सकता है कि ये अपने में ही मस्त मौला है. They see only technical skills. हाँ, they see only technical skills. They don't see such skills. Okay, but scenario is changing very fast. People are realizing, Yes. big companies are realizing Yeah. that you know जो engineers हैं IITians है ना, पहले US में मेरे father गए थे educational pattern study करने बहुत साल पहले, तो उन्होंने ये निकाला था जो IITians है ना, they immediately shine बाहर जाके because उनको immediately best jobs मिल जाती हैं. But जो उनको वो कहते हैं late bloomers, जो state level colleges से निकले हैं, जैसे PTU के हैं और यहाँ GNE के हैं स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग करके गए, they are late bloomers. Late bloomers क्या, ये बाद में ब्लूम करते हैं और बाद में कई उनसे अच्छा कर जाते हैं because they have more interpersonal skills. और जो वो सारे जीनियस है इंटेलिजेंसिया ऊपर वाला, वो मतलब ज्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो मोस्टली सेल्फ वो उसमें अपने अंदर ही रहते हैं. They are not very communicative with others. Nowadays they usually prefer on job trainings and rotation of their departments. हाँ, ये बहुत प्रेफर करते हैं. Even at the starting जब orientation करते हैं ना कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग का, तो they are doing various activities, outbound programs, तो पूरी टीम को बाहर ले जाके ये सोल्यूशन में डालना है, ये सोल्यूशन में डालना है. ठीक है, अब अगले पैरे में उसने सोल्यूशन डाले हैं. वो क्या डाले हैं? There are many ways to rectify the situation and make sure that new hires do not lack such abilities. ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया. और तीसरे पैरे में भी उसने ना सेकेंडली दूसरा कंपनीज क्या कर सकती हैं, तो ये सेकेंडली करके तो एक मैनी वेज पहला एक उसमें दे दिया और सेकेंडली इसमें दे दिया कंपनीज अपने लेवल पे क्या कर सकती हैं. ठीक है, सो दिस बिकम्स द स्केलेटन ऑफ दिस एसे. अब आपको स्केलेटन लिखना आ गया एसे का. प्रॉब्लम सोल्यूशन एसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. मैम एक डाउट था. हाँ सॉरी. सो मैम सॉल्यूशन में जैसे आपने लिखा है इलेबोरेट इंटरव्यूज बिफोर रिक्रूटमेंट, तो ये तो प्रॉब्लम से भागना हो गया, ये उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, कि मतलब उनको लो ही नहीं. नहीं ऐसे मैं आपको बताती हूँ, ये सोल्यूशन ही है. ये सोल्यूशन इस वे में है that when the people know that there will be elaborate interviews, they will brush up those skills before applying. ये तो राइट कंपनी, मैंने प्रॉब्लम ही ये डाली है, कॉज ही ये डाला है कि वो इंटरव्यू करते ही नहीं है. they just hire based on technical skills, written test लिया या just उनकी डिग्री देखी IIT ने hire people. Okay, but elaborate interviews का मतलब है then they look into all these things and then hire, and then the interviewee also knows कि उसको ये सब brush up करना पड़ेगा, otherwise he will not be hired despite having a good degree in hand. तो ये solution ही है. Okay. When elaborate interviews will start to be conducted by big companies, people will be brushing up their skills before that. So ये कमी आएगी नहीं ना फिर. This is a solution. ठीक है. ओके, तो मैम इसको फिर हमें ठीक से पूरा इलेबोरेट करना पड़ेगा, मतलब पैराग्राफ में इलेबोरेट पूरा पैरा बनाओगे आप, उसमें पूरा इसको एक्सपैंड करोगे.
ठीक है। और फिर कंपनीज जो है वो कंपनीज अपने लेवल पे आफ्टर द जॉब ट्रेनिंग भी देती हैं, उसमें भी बहुत ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं और जो उस वे में उनको हेल्प करते हैं। ठीक है। और फिर ड्यूरिंग वर्क ऑल्सो पूरी कंपनी के वो लंचियंस वगैरह करवाते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट सारे सब लोग मिलें, एक दूसरे से बातें करें। ठीक है। और वो करें। सो जैसे अभी हमारा तो बहुत ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बट इंद्रूप हैज हायर्ड अराउंड 30 टीचर्स हैं, तो वो फिर व्हाट ही डज इज दैट कभी कभी उन सबको कहीं ले जाता है लंच कराने, सबको इकट्ठे, तो that he does. So ये सब practices he learned from the US and he's applying here, and they are also happy, and then they interact with each other also. And ओके, तो मैम वो सब लिख सकते हैं कि फ्राइडेज को फन एक्टिविटीज हाँ होते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो फिर इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ाने के ही तरीके हैं ना। हाँ, you can write that, you can write that. ठीक है मैम। हाँ जी मैम, इसके और कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेज मैंने दूसरा लिखा है कि सबसे पहला है कि मेन रीजन तो ये है कि वो हायर करते हैं हरिडली, they don't consider other things, they just consider the degree. And the second reason is that companies जो हैं, they don't spare the time and the effort to train the employees. जो छोटी लेवल की कंपनीज है ना, वो ट्रेनिंग नहीं देती हैं। बड़ी कंपनीज तो अब ट्रेनिंग दे रही हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट जो छोटी छोटी कंपनीज है सारी कहाँ ट्रेन कर रही हैं एम्प्लॉइज को इन चीजों के लिए। ठीक है। मैम, तो मतलब कि जो हमने कॉजेस लिखे हैं उसी के सॉल्यूशंस लिखते हैं, उसी के बेस पे सॉल्यूशंस लिखना, कुछ बाहर और ना लिख देना। ठीक है। मैम, आई एम हैविंग वन डाउट। जो सेकेंडली वर्ड यूज किया, अगर पहले पैराग्राफ में कहीं फर्स्टली यूज किया हुआ है तो ही सेकेंडली यूज कर सकते हैं या कुछ पैटर्न नहीं, होता है? जरूरी नहीं है। अगर एक ही पॉइंट है, अगर ये अगला पॉइंट है तो सेकेंडली यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके मैम, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और मैम, हाँ इंटरपर्सनल स्किल्स को हम सॉफ्ट स्किल्स लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सॉफ्ट स्किल्स। यस, ओके, हाँ लिख सकते हो। या तो मैम नॉन टेक्निकल स्किल्स भी लिख सकते हैं ना, लिख और सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। यस, यू कैन राइट दैट। सॉफ्ट स्किल्स लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो आपको सिनोनिम्स भी मिल गए, है ना? यस मैम। हाँ, तो आज सिर्फ 3 ऐसे हुए हैं, बट आई थिंक दीज 3 एसेज स्केलेटन्स विल हेल्प यू। अगर एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे आ गया तो आपके मन से एक डर निकल गया, दैट यू विल बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हैंडलिंग ये क्लास में इसको कर देती हूँ, और यही वाली फाइल जो मैंने इसकी ये डॉक्यूमेंट बनाई है, आई विल शेयर दिस। ठीक है। मैम इसके सॉल्यूशन भी होंगे सेंड? हाँ, सॉल्यूशन क्या मतलब? मतलब मैम जो पूरे लिखे होंगे पूरे ऐसे तो आपके पास बुक है ना? यस मैम। हाँ, तो बुक में है ये एसेज, ये बुक के एसेज हैं। ओके, जॉब एसेज लिए मैंने बुक में से। ओके मैम। ठीक है। ओके, सी यू टुमारो। ओके, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये ऐसे आप फुल शेयर करोगे? मैं कर देती हूँ, चलो जितने हैं। ओके, ग्रुप में ना मैम? ठीक है। हाँ। थैंक यू मैम।